of soul consciousness. We are not just body, more than body, we are consciousness. In the scientific community, consciousness word is more used than soul. अगर आप किसी डॉक्टर को जानते हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे, तो वैसे हर पर्सन का, हर डॉक्टर का अपनी फैमिली कंडीशनिंग उसके उनके कल्चर के अनुसार, उनके पेरेंट्स के अनुसार अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी जो मेडिकल जर्नल में, साइंटिफिक कम्युनिटी में थोड़ी बहुत बात हो रही है इन सभी विजडम के रिगार्डिंग, तो कॉन्शसनेस पर हो रही है। कॉन्शसनेस बियॉन्ड लाइफ, कॉन्शसनेस एंड कॉन्शसनेस बियॉन्ड लाइफ। We are fundamentally consciousness. We are originally consciousness. And unless we shift our understanding to the consciousness level, it's not possible to solve most of the problem of our world. For the example, this COVID lockdown, the things which are happening all over the world, unless we shift our understanding to the consciousness level, it's not possible to solve all the issues which are happening. The fear, the anxiety, Ibn Alexander is a very interesting doctor, a neurosurgeon who suffered coma after 7 days of meningitis, and in that coma he experienced life on the other side, life on the higher world, higher plane. He has narrated his experiences beautifully in his 3 books. Living in a Mindful Universe is his 3rd book and the best book. Cardiologist Pim von Lommel is a cardiologist who is studying consciousness phenomena. Does we end at the death? His finding with his patients who survived cardiac death many times after the heart attack, if the person is in hospital or if CPR or other cardiac resuscitation methods are employed, many times few people revives. In those rare subject who revived after few moments of stopping the heart, 12 to 18% in the scientific community, when they measure, they gets data how many percent people are experiencing this phenomena. So 12 to 18%, around 18% experiences the life on the other side. They experience that after death they are not ending, just body gets set down and they are still existing, but in world which is not physical world. These experiences has been described in these both books. There are many other books as well. In meditation we can experience life on the other side, life outside of our physical body.
We have to understand death. We have to understand emotion associated with death. Death is not the last phenomena of life. Most of the people, in the way they understand life, in that sense death is the end. But if we understand consciousness, if we understand soul, death is not the end. But we have to understand emotion associated with death. Part of us dies, not the whole of us. We have to understand our astral body, our causal body. Astral body has energy, causal body has karma. We have to understand what happens after the death. And if we understand what happens after the death, and if we start doing that, even now, the life will become more meaningful. So what happens after the death? We review our life. We assess our life. अभी जो हम जिंदगी जी रहे हैं उसमें अक्सर हम भाग दौड़ की जिंदगी में, धन कमाने की जिंदगी में, या जो भी हमने टारगेट सेट कर लिया उसको जीने की जिंदगी में हम लाइफ का जो रियल पर्पस है वो भूल जाते हैं। कभी कभी याद भी रहता है, थोड़ा बहुत याद रहता है। इन बातों को जितना हम समझें, चिंतन करें, हमारी जिंदगी, हमारी ये सोल जर्नी उतनी खूबसूरत हो सकती है। तो हमें टाइम टू टाइम बैठकर चिंतन करना चाहिए अपने जीवन के बारे में कि मैं अपनी लाइफ को किस ढंग से जी रहा हूं, क्या ये लाइफ जीने का सही ढंग है। कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन। लाइफ में हम चिंता ना करें, चिंतन करें। लोग चिंतन करना नहीं जानते और चिंता करने लग जाते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है। तो कोई प्रॉब्लम अगर हम सोल लेवल को समझें, कॉन्शियसनेस लेवल को समझें, तो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो ये है कि हम अपने आप को वो समझ रहे हैं जो हम नहीं हैं। जिंदगी में अगर हमने एक झूठ को पकड़ लिया तो फिर उसको बचाने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए हमें कई झूठ लाने पड़ते हैं। हम सोल हैं, कॉन्शियसनेस हैं, इस बात को अगर हम नहीं समझते हैं, डेथ इज ए टेम्पररी फिनोमिना ऑफ इन सोल लाइफ। फिजिकल लाइफ जैसा के रूप में हम जैसा जानते हैं उसमें एंड है डेथ का, वो डेथ का एंड है। लेकिन सोल लेवल पे डेथ तो एक फेज है। जैसे रात में हम सोते हैं वैसे सोल लाइफ में जो डेथ है वो एक सोना है। हम रात में सो जाते हैं तो फिर हम ड्रीम में जगते हैं, ड्रीम में हम कुछ करते हैं। एस्ट्रल बॉडी के लेवल पे हम अदर साइड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, करते हैं। थोड़े समय के बाद फिर से वापस जग जाते हैं। थोड़े समय के बाद कॉजल बॉडी के कर्मा के अनुसार एस्ट्रल बॉडी, नई एस्ट्रल बॉडी बनती है और हम नया जन्म ले लेते हैं। लाइफ, डेथ एंड लाइफ, डेथ एंड री इनकारनेशन के बीच में ये जो लाइफ रिव्यू होता है उसको हमें समझना है, कर्मों को समझना है। और कर्मों को समझने के साथ साथ बात आती है, आवर लाइफ इज नॉट ओनली फॉर आवर्स, इट इज फॉर एवरीवन अराउंड अस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी कैसे हों, सभी आनंदित कैसे हों, सभी स्वस्थ कैसे हों। लेकिन अगर हम अपने आप को सिर्फ शरीर समझते हैं तो हम नैरो माइंडेड हो जाते हैं। सिर्फ अपना लाइफ, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, बस हम मेरा पे रुक जाते हैं।
if we understand consciousness level, then we will take care of everyone around us. जितना हम अधिक से अधिक लोगों का केयर कर सकते हैं अपने आसपास, दैट्स ए इनडायरेक्ट साइन of our spiritual maturity. वैसे तो हमें लाइफ में कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, बट इट इज पॉसिबल टू असेस हाउ मच समवन इज ग्रोन अप, उसे कर्मा कितना समझ में आता है. देयर आर 30 karmic lessons, and among those 35 most important is patience, धैर्य. हमें धैर्य सीखना होता है धरती पर, और धैर्य सीखने का कनेक्शन हमारी इटर्निटी से भी है. सोल इज इटर्नल, अजर अमर अनंत. शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता. शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती. शरीर लिमिटेड है, आत्मा अनंत है. जो नहीं जन्मने वाली, नहीं मरने वाली, नहीं जिसका क्षरण नहीं, जिसका नहीं होता है, उस सोल कॉन्शियसनेस को हम समझ जाएं, इटर्निटी को समझ जाएं, तो क्या हमारे भीतर पेशेंस नहीं आ जाएगा? अपने आप से आ जाएगा. ध्यान में मुझे एक बार ऐसा अनुभव हुआ कि ये सूरज भी कभी बुझ जाएगा, हो सकता है ये पृथ्वी भी कभी ना रहे, लेकिन जो होना है मेरी चेतना का, वो तो सनातन है, एवर लास्टिंग. फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, perspective of my life changed. Patience comes from understanding of eternity of soul. थोड़ा फिजिकल, थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पे हमें समझना हो तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, दिस टाइम शैल पास. यह भी समय निकल जाएगा. जब भी किसी को हो, कोई मुश्किल समय में गुजर रहा हो, तो उसके पास, उसके कंधे पर हाथ रखना, क्लोज मेंबर है तो हग करना और हिम्मत दिलाना, दिस टाइम शैल पास. यह भी समय निकल जाएगा. होप, हमें जिंदगी में होप रखना चाहिए. अच्छे दिन आने वाले हैं. हर एक आत्मा के लिए उसके कर्मों के अनुसार, उसके अनुभवों के अनुसार, उसके अच्छे दिन उसके जीवन में आ ही रहे हैं. जितना सजग होंगे उतना शीघ्र, अतिशीघ्र आता है. इनफैक्ट every experience of our life is for understanding, for developing the understanding. जब हम गिरते हैं, जब कोई छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा हो, वो साइकिल चलाते हुए जब वो गिरता है अगर, तो गिरने के प्रोसेस से ही सीखता है. तो हमारे ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम आते हैं, या इस दुनिया में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे ये कोविड का लॉकडाउन, तो ये गिरना हमारे सीखने का हिस्सा है, पार्ट है. यह बात समझें तो पेशेंस आ जाता है. बिना गिरे कोई बच्चा साइकिल चलाना नहीं सीख सकता. जिंदगी में हम कभी नहीं लड़खड़ाएं, कभी फेल नहीं करें, ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता. एनी फेल्योर, so called failure, in the consciousness sense there is no failure. But even if in the physical sense, if we think that this is failure, that is a temporary phenomena for
हायर सक्सेस। कोरोना का लॉकडाउन है तो हम अधिक महत्व समझ रहे हैं प्रकृति का, कॉपरेशन का, मेंटल हेल्थ का, स्पिरिचुअलिटी का। जितना हम ये समझ जाएं पर्सनल लेवल पे और ग्रुप लेवल पे, उतना हम इस फेज से, इस एक्सपीरियंस से स्मूथली बाहर आ जाएंगे। हमें पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, यह एक लेसन है। तो जो पेशेंस का लेसन है वो जनरली इन द फीमेल बॉडी सीखना ज़्यादा आसान होता है। जब माँ बनती है एक लेडी तो वो जो फेज है वो पेशेंस को बहुत विकसित करता है। तो जिंदगी पेशेंस हमें सीखना है। 30 lessons are there. Among those 30 lessons, the main lesson, patience, love, dharma, जो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ हैं, जिनके बेसिस पर ये सृष्टि चल रही है, और उसमें सबसे मेन बात है कि हाउ मच वी केयर फॉर आवर फेलो बीइंग्स। हम अपने आसपास के लोगों का कितना ध्यान रखते हैं, यही धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नॉन वायलेंस एक धर्म है। धर्मा को समझना, धर्मा को जीना, और जब धर्म को सब समझने लगे तो मेरी आत्मा के लिए सबसे मुख्य धर्म कौन सा है, मोस्ट यूनिक लेसन जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो धरती पर नॉन मेडिसिनल हीलिंग, जीरो बजट हीलिंग, जीरो बजट हेल्थ को पॉपुलराइज करने के लिए मेरा जन्म है, मेरा पर्पस है। माई होल लाइफ इज डेडिकेटेड टू स्प्रेड नॉलेज, अवेयरनेस ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ। जितना हम सोल लेवल पे, कर्मा लेवल पे, एनर्जी लेवल पर जाग जाएं, सभी तरह की हीलिंग चुटकियों का खेल है। स्टेज 4 कैंसर भी हील होता है, हो जाएगा, जितना हम समझ लें इन सभी कंसेप्ट्स को। वो सब मैं अपने सिखाता रहता हूँ, मैं सिखाता रहूँगा। ट्रुथ, आत्मा की सच्चाई। कौन सा लेसन हमें कौन से जेंडर में, कौन सी किस तरह की फीमेल बॉडी में या मेल बॉडी में हमें सीखने को मिलेगा, वैसा हम बॉडी चूज करते हैं। इफ वी आर आउट गोइंग पर्सनैलिटी, हमें ऐसा काम करना है जिसमें हमें आउट गोइंग होना है, देन एज पर द कल्चर मेल बॉडी चूज कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो मेल बॉडी इज मोर सुटेबल, मेल बॉडी चूज कर सकते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं अपने जेंडर को चूज करने पे। सोल लेवल पे कोई जेंडर नहीं है, अलग अलग जन्मों में हम अलग अलग जेंडर लेते हैं। ऐसा हो सकता है इस जन्म में हम मेल हैं, पिछले जन्म में हम फीमेल रहे हों। अगर ये हमारा जन्म आखिरी जन्म अगर ना हुआ, अगर हम इन सभी बातों को अगर नहीं सीख पाए, नहीं कर पाए, अगर अगला जन्म हुआ, हो सकता है हम जेंडर चेंज कर लें, मेल हैं फीमेल बन जाए, फीमेल हैं तो मेल बन जाए। डिटेल्ड एनालिसिस, रिव्यू, काउंसलिंग होता है मास्टर्स ऑफ कर्मा के सामने। इट इज ए वेरी डीप प्रोसेस, इसलिए जनरली 2.5 से 4 साल का गैप होता है जन्म और पुनर्जन्म के बीच में। जो सोल रिसर्चर्स हैं उन्होंने इतना भी खोज लिया है
डॉक्टर जिम टकर, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में साइकेट्रिस्ट. ही इज अ थर्ड जनरेशन रिसर्चर ऑफ दिस टॉपिक्स. यान स्टीवेंसन के स्टूडेंट हैं. बट इट वेरीज सोल टू सोल कि कितने देर के बाद जन्म लिया जाता है. हमारा जो जन्म है वो हमारा चुनाव है. किस तरह के परिवार में, किस तरह के कल्चर में, किस तरह के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में हम आएंगे, ये हमारा अपना चुनाव है. जीवन में हमें धैर्य रखना है और इन सभी बातों को सीखते जाना है. धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे